बता देना। Go ahead. Hello everyone, I am Aman Gupta, coordinator of Ankit, and this is the second workshop of combined workshop of DGSIM and Funkit. So let's start with the quick review of previous workshop. So there are various number systems that we use in our life. So the most basic is decimal number system. We use it in our day-to-day life. Apart from these, we have some other number system also that we use regularly in in our life. These are binary, octal, and hexadecimal number systems. So first, we see how to convert a decimal number system to binary or any number system to other number system. So for example, we have 525 and we want to convert into binary. So we take 2 as our divider and we divide the 525 until the quotient will become 0, and we will store the remainder to get the number in binary form. So when we start dividing 525, the first remainder will be 1. So this 1 will be the least significant digit. So the least significant digit will come here, 1, and the quotient will be 262. After again dividing by 2, we get 131 and the remainder is 0. So we store 0 at the next significant digit and continue these steps until we get 0 as the quotient. So after writing all the remainders, we get this binary digit. Sorry, this is the binary form of 525. We usually write the base after the number is subscript, so that there are no confusion in understanding the which base represents the which number. Uh, this is octal number 1453. To convert an octal number into decimal number, we follow we follow a rule, like 1453. So we multiply 3 by 8 raised to the power 0. We multiply 5 by 8 raised to the power 1, 4 by 8 raised to the power 2, 1 by 8 raised to the power 3. So after solving this and addition of all the terms, we get the number in decimal number system. So this will be some number that you can solve. If you have some number after point 11453.15 or something, then suppose we have 1453.15, then the number after the point, that is 1 will be multiplied by 8 raised to the power minus 1, and 5 will be multiplied by 8 raised to the power minus 2. So these terms also get added and the final result will be something in points that you will see in an example in few minutes. uh, for hexadecimal system, we have 0 to 9, and afterwards for 10, 11, 12, 13, 14 and 15 we use capital A, capital B until capital F to represent the numbers. And this is also the conversion system of hexadecimal system to normal decimal system that we have seen an example right just here for octal, and this is also the same as previous. This is also an example of decimal to binary and octal to binary. Sorry, decimal to octal. We divide 56 by 2, remainder is 0.
this will be the least significant digit. Afterwards, फिर again 0, 0, 1, 1 and 1. So this is 1, 1, 1, 0, 0, 0. This is the binary form of 56. And similarly, we can solve for octal. If you want to convert binary to octal or hexadecimal, you can convert directly by grouping them into 3. And the rule is we should start from backward least significant digit. So by forming the pairs of 3, 3, this will be 1, this will be 6, then 3 and then 2. So you can convert the large binary number into octal directly. For hexadecimal, we will pair them into group of 4. So this will be 1, this will be 15, so F, and this will be 4. And again, we are converting some binary to decimal number. Yeah, these are the things that we followed from previous examples. So try them once. Logic gates. So these are the basic logic gates that you have studied in your 11th and 12th class. And gate. So the in AND gate, output will be high if both the inputs are high. And OR gate, output will be high if either of the input is high. Inverter just invert the input. So if input is 0, output will be 1, and input is 1, then output will be 0. And buffer buffer do nothing but it just pass the input to output. And some other important gates are NAND gate. So NAND gate is just completely opposite of AND gate. So the output will be low if both the inputs are high, and in NOR gate the output will be high if no sorry output will be low if either of the input is high. This is XOR gate. XOR and XNOR gate are very important from the point of view of algebraic expressions for solving them. So in XOR gate, the output will be high if either of if only one input is high. If both inputs are same, then output will be 0. And XNOR gate is just opposite of XOR gate. And this is the algebraic expression for XOR gate: xy complement plus x complement y. And for XNOR it is xy plus x complement y complement. And remember them, these are very important from the point of view of calculation, simply for simplifying the expression. Universal gates. So universal gate is a gate which can implement any Boolean function without the help of any other gate. So there are two types of universal gate: NAND gate or NOR gate. So as you can see in this picture, we can convert we can make every other gate using NOR gate. We only use NOR gate and every other expression is obtained. See, this is OR gate, this AND, this is NAND, this is XOR and NOT gate. So you can try them once at home and do the same for NAND gate too. Min terms. Min terms is the product of all the literals. Means if you have three inputs like A, B and C, then the product of all three inputs A, B and C,
this will be the minterm, but you have to take care about you are writing its complement or without complement. So if the variable is 0, then you will write its complement, and if the variable is 1, then you will write it without complement. So see, in this expression x, y, and z, all three are 0, so we write their complements x dash, y dash, and z dash. Their multiplication is the minterm. In second, 0 0 1 x dash, y dash. So if x is 0, so we use x dash, y is 0, so we use y dash, and z is 1, so we write it at z. So this is our minterm. Uh, Now we can see 0 x y z, 0 0 0 will form 0, so we write it as m0. Then 0 0 1 is m1, 0 1 0 is m2. So we can write it them as m0, m1, m2, m3 till m7. Similarly, max terms are just the sum of literals. Minterms are product of all literals, and sum is max term is sum of all literals. So for representing them, we use capital M. So just like minterms, we denote max terms m0 to m7. Sum of products and products of sum. So basically, the combining the minterms is a sum of products. From the name itself, it is clear. We use product in minterm and combining them with OR gate. So this is sum of product, and product of sum is combining the max terms. Max terms are the sum terms. So when we will combine them, this will be the product of sum. Okay. So minimization. The first thing, why we need minimization of an expression. So after minimization, we can save cost of the gate, less power dissipation, faster response. So it will be overall more efficient and preferable. So we generally minimize our Boolean function. So there are two methods, by using simple Boolean algebra and by using K-map. So we use Boolean algebra for fewer inputs, like 2 or 3 inputs. If there are 2 or 3 inputs, then we can solve it by using Boolean algebra. But for more number of inputs, it is not convenient to solve them by Boolean algebra. So we use K-map. Mm. For by solving Boolean algebra, these are some identities, basic rules and laws. So identity law is 1 dot a is equals to a, and 0 plus a is equals to a. You can prove all these identities using Venn diagrams very easily. You have studied Venn diagram in your 11th and 12th class. Null law 0 into a is 0, 1 plus a will be 1. Idempotent law, a into a will be a plus a will be a. Inverse law, commutative law, AB is equals to BA and A plus B is equals to B plus A. Associative law, AB into C is equals to A, B into C. Similarly, OR form, distributive. This is we use generally A into B plus C is equals to AB plus AC. But this is little awkward to see A plus BC is equals to A plus B into A plus C. But this also follows in our identity, and you can prove it easily using Venn diagrams. And this is absorption law, a into a plus b is equals to a,
and a plus ab is equals to a. And De Morgan's law, this is very important. We also call it concept of duality. So complement of AB is equals to A complement plus B complement, and complement of A plus B is equals to A complement B complement. We will see it in few minutes. Uh, this is a simplification using Boolean algebra. So in last workshop we solved, Aman Kumar solved it very easily and by proper steps. So you can see, or you can see there, these are just simple expressions, and everything is written what we have done here to solve this expression. Concept of duality. So it states that every algebraic expression deducible from the postulates of Boolean algebra remains valid if the operators and identity elements are interchanged. So see here, a plus b, complement of a plus b. So we use complement, so we will complement the inputs. So this is a complement and b complement, and for plus we will replace it by dot. Similarly here dot will be replaced by plus sign, and the complement a and b will be replaced by their complements, a complement and b complement. So we are converting a, this is a sum of product, and this is product of sum. So we can interchange them. So POS and SOP forms both are interchangeable into one another. Okay. This is again a simplification. You can see in previous workshop. Yes. Yeah, K-map. Let's see. This is a K-map. This is how it looks. So a K-map is a diagram made up of squares in which each square represents one minterm. So this every square, there are 8 squares in this. So every square will represent one minterm. Okay, and minterms are product terms of all the variables like 0, 0, 0, 1. We have seen just right. Uh, Adjacent squares always differ by one literal. Uh, that is called gray code. So see, this is 0, 0, 0, 1, and 1, 1, and 1, 0. We generally write 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. But in gray code, the gray code of 2, binary 2 is 1, 1. You can convert a number into gray code. 1 minute. Suppose you want to convert this binary form of 56 11100 into gray code. Then you can do this. The most significant digit is in both is same. So we will write 1 at first, and after that, for next digit we will take XOR of uh, first two most significant digit. So that XOR of 1 and 1 will be 0. So after first most significant digit is 1, then 0. Afterwards we take XOR of this one and this one. This will be again 0. So 1 0 0. Again it's 1 0. XOR of 1 0 is 1. So 1 0 0 1. Again XOR of 0 and 0 is 0. So the number become 1 0 0 1 0.
and again XOR of 0 and 0 is 0. So the gray code of 111000 will be 100100. If you didn't get it, ask in. I will make it clear after in few minutes. Okay, so yeah. Why we write them as gray code? Because suppose we are taking these two terms. This is wait. Suppose we are taking two terms A and B, and since there is only one bit changing in next square, so all the other literals will be same, and one will be B and other will be its complement B dash. So when you add both of them, that will become B plus B complement, and all other terms will be common. So B plus B complement become 1, and that will be dissolved, and our final will be written as A, or matlab the common term that we have taken. For circling the KMF, there are some rules. So every square containing one must be considered at least once. It does not matter in how many groups you are taking one, but it should be included in at least one group. Yeah, and a group must be as large as possible, and the number of squares in a group must be equal to 1, 2, 4, 8, 16, means some number raised to the power of 2. 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, and so on. The map is considered to be folded or spherical. So अमन, एक हाँ सेकंड, तुम कोई और भी स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? लाइक अभी हमें सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम वाली स्क्रीन खुली हुई दिख रही है। नहीं यार, मैं कैमएफ वाला खुल रहा है। तुमने शायद एक ही स्क्रीन को शेयर करा होगा। नहीं, तुमने शायद तुमने 2 स्लाइड्स खोल रखी है ना, तुमने शायद किसी एक को ही क्लिक करा होगा, इस वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा है। अब सही है? हाँ, अब वर्कशॉप 2 वाली खुली पीपीटी। पहले कुछ नहीं दिखा था क्या? पिछले वाली स्लाइड से ही जो था वो हो रहा था, मतलब तुम सर्कलिंग से सर्कलिंग से थोड़ा आगे से कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है। So let's start KMap again. So KMap is a diagram made up of squares. So you see each square will represent one minterm, and with each square representing one minterm of the function that has to be minimized. Minterms, we have just seen it, product of all the variables like 0 0, so it will be A dash A complement B complement. Adjacent squares always differ by just one literal. We used in that we use it gray code, and we use this because so that we can apply this x plus x complement is equals to 1 form. Circling of K-maps. So every square containing one must be considered at least once. So where we see one, we should include it at least once. If it is included in some other groups,
that is not a problem, but it should be included at least once, and the group must be as large as possible so that our term will be the minimized. Uh, the number of squares in a group must be equal to 1, 2, 4 means uh, then a number raised to the power of 2. So 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, and so on. The map is considered to be folded or spherical. You can see it here. If you fold this square along the row, then you will see that these one and these one will be adjacent. So you can circle them. Similarly, if you will fold it spherically, then all these corner elements, this one, x and x, these all will come together. So you can circle them also. The simplified logic expression obtained from K-map is not always unique because grouping can be done in different ways. Uh, these are some valid and invalid groups. This is invalid because we can make the group of 4 as seen here, and here also it is group of 4. We can form group of 4. This is not applicable diagonal grouping. This is correct. These two corner ones are grouped by using folded rule. This is also, I just explained it. And these corner rule, and these are squares, rectangles, form group of 2 and 4. So let's solve some examples so that it will be clear. We write it as M0, M1, M2 and M3. This is two variable input K-map. As you can see here, it is 1 and 1, so we circle them. This is A and this is B. So here B is changing, so the one that is changing we exclude them, and the letters that are constant in all of the group, that includes in our final expression. So A is same in both the minterms, so we write F is equals to A and V is changing. And if you write it as this is AB dash and this is AB, so after solving them, taking A is common, B dash plus B is equals to 1. So the term reduces to F is equals to A. This is 3 variable in K-map. In this red circle, we see that A is changing, B is constant in all of the 4 minterms, that is 1, and C is also changing. So B is constant, so we write it F is equals to B, and in this green circle A is constant and B and C are changing, so we write F is equals to A plus B. For this we see by seeing red circle, we see A is changing 0 and 1, B is constant and C is also constant. So B is 0, so we write its B complement, and C is also constant, so and it is 1, so we write it as C. In green circle, A is constant and it is 0, so we write A complement, and B is changing, C is constant and it is 1, so we write it C. Similarly, you can solve
all of these K-maps. This is four variable K-map. This is 0 1, sorry, this will be 2, it is misprinted, 3 4 5 6 and 7. See, this is 7 because 0 1 0 1 1 and 1, this represents 7. This is not 6, as you, this is 7. Similarly, here you can see this is 1 1 0 0, 1 1 0 0 represents 12. So this min term represents M12. This is M13, M15, M14. So you will become handy in this because after some practice, let's solve this. This red circle, in this A is changing and B is changing, C and D is constant. So C is 0, so we will write C complement and D. Here we make the circles by the folding rule. So here we see A is changing, B is constant, and it is 1. So it is B, and C is changing and D is constant, 0 and 0. So it will be D complement. Similarly, you can solve all the K-maps easily. If you have any doubts about this, you can ask us. K-map with don't care. We use don't care in two conditions. First, if some of the inputs never appear, or in the second condition is if some inputs will appear but their output doesn't matter. We don't care about the output, what is the output, so we just ignore them. So this is BCD to 7 segment decoder. We write 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. You have certainly seen in some at stations, railway platforms, where you use this digital watch. So for representing 0, we see that this G will be 0 and all other sticks will be 1. So A, B, C, D, E, F, all others will be 1 and G will be 0. Similarly, for 1, we only need B and C 1 and all others are 0. So we made the truth table according to that, and there is a logic combination between them so that we can get this output as we desired. So to obtain that, we will solve it using K-map. This is our truth table. And these are four inputs, and we want to show only digits from 0 to 9. So 10, 11, 12, 13, 14 and 15. They will never appear. So we don't care about their output. So we will write them as D. And we can use them as 0 or 1 as our convenient, but not both at the same time. Either 0 or 1, not both. So we will solve for every output A, B, C, D, E, F, G and obtain the expression. See, for A, we marked all 1, 0 and every D will be is represented by X. Don't care. So we form the groups
this large group is A is same here, and B, C, and D all are changing. So this is A. This big group, this is C, because A and B are changing. D is also changing. So this is C. Similarly, this middle circle, here A is changing, B is constant, and C is changing, D is constant. So it is BD, and this one is B complement and D complement. This will be formed by spherical folding. So all the corner elements and all the corner minterms, and this is B dash D dash. So you can solve other outputs also and obtain the BCD 7 segment decoder. And now let's start combinational circuits. So in digital electronics, there are two types of circuits: combinational circuits and sequential circuits. Uh, in combinational circuits, the output is only dependent on the present set of inputs. But in sequential circuit, the output is dependent on present inputs plus previous outputs also. So we have some memory elements also to store the previous outputs and to use them again. So the combinational circuits can have n number of inputs and m number of outputs. So this is general combinational circuits. This will be the interconnection of various logic gates, and after we have n inputs, so there will be 2 raised to the power n possibilities what are the inputs, and for each one of them there will be some output. So we can form a truth table of 2 raised to the power n inputs, and for each one of them there will be one output. So we can solve them by using K-map simply. So let's solve one half adder. In half adder we have two inputs A and B, and the output will be their sum and carry. So if you will add 0 and 0, sum will be 0 and carry also will be 0. Input, if input is 1 and 0, then the sum will be 1. So sum 1 and carry 0. If input is 0 and 1, then again it's same. Sum is 1 and carry will be 0. If both the inputs are 1 and 1, then the summation will be 1 0. So 0 will be written as sum and 1 will be the carry. So you can see this C. This is something like AND gate, because the output is high when both the inputs are high. So C can be directly written as A into B, and the sum, you can see, if both the inputs are same, then output is 0, otherwise it is 1. So this is the property of XOR gate. So this sum will be XOR of A and B, and carry will be AND of A and B. Similarly, we have full adder. What we do in full adder, we have two digits A and B, and in addition to this we have C in previous carry, because while we do an addition, the least significant digit just added, and their carry always propagate. So we didn't use the previous carry in half adder, so we modified it using full adder. So now we have 3 inputs and 2 outputs. So 0 0 0 will be 0, so sum and carry both will be 0. 0 0 1 will
sum will be 1 and carry 0. When we have two inputs 1, 0, 1 and 1, so the sum will be 1 0. So 1 0, so sum will be written as 0 and carry will be 1. And if all the three inputs are 1, then the sum will be 3, means 1 1. So sum will be 1 and carry will be 1. So by solving them using K-map, by circling we see that all are different. There is no other possible grouping. So we write all the minterms, and this is a special form, that is A's or B's or C. So by solving these terms, we take A complement common, B complement C plus BC complement plus A taking common is A here. This is B complement C complement plus BC. So this is the expression of B's or C. So this is B's or C, and this is the expression of XNOR gate. So this will be complement of B XOR C. So this is something looking like this: X complement Y plus Y X into Y complement. So this is again XOR gate, so this can be written as A XOR B XOR C. Similarly, for carry, we form circles and solve the expression. So this is a simple expression: AB plus BC plus AC. And this is the realization of this circuit. The sum is XOR of all the three terms, and the product is, carry. Carry is the AB plus BC plus AC. Okay, from now on, Ravikant will take over. Good evening, guys. तो तू कर रहा है ना शेयर, रविकांत? हाँ, मैं करने वाला हूँ, एक सेकंड. Just a second. Sanidhya, do you have a doubt? Yes, Bhaiya. Yeah, go ahead. Yeah, can you please open that sum K-map slide? Yeah. कौन सा वाला? The second अच्छा, last sum one. का. Sum अच्छा, K-map. हाँ, बोलो. No, yes, yes, this one. Bhaiya, in this, can't we take that corner ones as spherical? Means we can take in box using spherical K-map. मतलब ये 10 सॉरी, ये वाली और ये वाली को बात कर रहे हैं. हाँ हाँ भैया. नहीं कर सकते. देखो, लॉजिक क्या होता है ना हमारे सर्कल करने का, कि कॉम्प्लीमेंट हो जाए. यहाँ पे तुम अगर करते हो तो ये क्या होगा, ए बार बी और सी बार, ठीक है. और इधर वाला यानी ये वाली टर्म ए बार बी और सी बार, और दूसरी इधर से क्या बचा तुम्हारा, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, ये दोनों. अभी तुम अगर नॉर्मली भी लिखते हो तो ये कॉम्प्लीमेंट लग रहा है क्या कि कुछ कट के हो जाए. मतलब वो तो तब यूज कर सकते हैं ना जब तुम्हारा कुछ जैसे इसमें लेट से ए बार होता तो ए बार कॉमन आ जाता, फिर कुछ कुछ कर सकते थे ऐसा. सॉरी, हाँ, यहाँ पे जैसे ए बार होता तो ए बार और सी बार कॉमन लेते, बी प्लस बी बार कॉमन हो जाता तो बी प्लस बी बार 1 हो जाता. पर इस केस में तो ऐसा कुछ होगा नहीं, इन दोनों को लेने से कोई भी टर्म तो कैंसिल नहीं होएगी.
देखो वो ये जो के मैप है ये तुम्हारा वही है जो हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाता है, इस वजह से इसको यूज़ कर लेते हैं। और ये सर्कल करने का मेन पर्पस ये होता है कि कोई 2 टर्म या कोई 4 टर्म मिला करके मेरा कुछ a प्लस ए बार या b प्लस बी बार ऐसा कुछ बन के कट जाएगा। जैसे लेट्स से इन दोनों एडजेसेंट वालों को सर्कल करेंगे तो इसमें मेरा इसमें यहाँ पे a कांस्टेंट है और c भी देखो 1 और 1 कांस्टेंट है, पर b मेरा एक जगह पे b और एक जगह पे b बार है, तो इन दोनों को अगर सर्कल करेंगे तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो इस वजह से इसको और इसको करने का कोई लॉजिक नहीं है। क्लियर है? हाँ भैया। ओके। सो गाइस अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, अभी सॉरी बहुत सारी थ्योरी कर ली। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग इसको पे 2 मिनट दो इस क्वेश्चन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तुम्हें एक सर्किट डिज़ाइन करनी है जिसका इनपुट होगा तुम्हारा BCD यानी 0 से 9 तक के सारे नंबर्स। BCD में 9 से ज़्यादा नहीं जाता, अभी तुमने पीछे में BCD से 7 सेगमेंट भी बनाया तो दिखा होगा। तो तुम्हारी इनपुट होगी BCD और आउटपुट होनी चाहिए XS3। XS3 का मतलब ये होता है कि तुम्हारी जो इनपुट है ना इसमें +3 ऐड हो जाए बस। तो जैसे कि 0 है तो 0 का आउटपुट 3 होएगा, 1 है तो 1 का आउटपुट 4 होएगा। तो तुम इसमें किसी एक के लिए, सबसे पहले W के लिए ही तुम एक के मैप बना के कोई सॉल्व करके 2 मिनट में बता दो कुछ, कैसे अप्रोच कर रहे हो देखें जरा। किसी का हो जाए तो बोलना, ठीक है? भैया एक्सेस 3 पहले से ग्रे कोड के हिसाब से अरेंज्ड है क्या? क्या? एक्सेस 3 का कोड पहले से ग्रे कोड के हिसाब से अरेंज्ड है क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं XS3 मतलब कुछ नहीं, अगर तुम्हें 0 है तो 0 को 3 करना है बस, 3 ऐड करना है नंबर्स में, इसमें और कुछ खास नहीं है। सिंपल एक के मैप बना के सॉल्व कर लो ना, एक W के लिए एक के मैप बनाओ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एनीवन? किसी ने किया थोड़ा बहुत भी? किसी ने नहीं किया?
ओके, तो मुझे लगता कि किसी ने पूरा सॉल्व करा। अगर कुछ भी करा हो तो बता दो, थोड़ा बहुत भी, किधर एक दो टर्म भी आए तो वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस फर्स्ट ईयर में से कोई चॉकलेट तो नहीं दे सकते यहाँ पे, पर अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा होता, वहाँ वर्कशॉप में एनसीआर में ले रहे होते तो चॉकलेट ज़रूर देते। ठीक है, अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं, तुम्हारी वर्कशॉप भी है, तो मैं खुद ही सॉल्व करता हूँ फिर। मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना, पेंट वाली? हेलो? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। हो रही है। चल रही। हाँ, तो सबसे पहले W के लिए एक हमें बनाते, W के लिए एक तो टेबल बनाता हूँ, बाकी सब सॉरी के मैप बनाता हूँ, बाकी तुम लोग खुद ही अटेम्प्ट करना। तो अपने पे W में इधर हो गए ए बी, 4 से एक सेगमेंट कर दो। अभी W में अपने को 5 से लेकर के 9 तक, 5 से लेकर के 9 तक 1 है, सॉरी 5 से, हाँ सॉरी 5 से 9 से लेकर सारे 1 है, उसके पहले वाले सारे 0। तो इसमें हम लोग ये हो गया 0 0 0 1, यहाँ पे 1 1। ये देखना, ये बहुत बार लोग गलती करते हैं कि 0 1 के बाद 1 0 पे लिख देते हैं। नहीं, ये इसमें उल्टा है, ग्रे कोड टाइप का है, तो इस पे हमेशा ध्यान रखना जब भी के मैप बनना हो उस वक्त। अभी 0 0 0 1 1 1, यहाँ पे 1 0। इधर है मेरा ए बी और इधर है अपना सी डी। तो अपने पास 5 के बाद से सारे 1 थे, 5 से लेकर के 8 तक। तो ये हो गया यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे भी 1। अच्छा, अपनी इनपुट जो है वो 0 से 9 तक है, तो ये तो हो गई 9 तक, आई 9 तक। इसके बाद के सारे टर्म क्या होंगे, किसी को कोई आइडिया? लाइक ये सब जो फिल नहीं कर रहा है 0 पे, ये 1 पे, ये सारे तो 0 होंगे, पर ये 9 के बाद वाले सारे टर्म क्या होंगे? क्रॉस, डोंट केयर। हाँ सही है, डोंट केयर। तो इसमें क्रॉस, इसमें क्रॉस, इधर भी क्रॉस। अभी अपने को अब ग्रुप बनाने हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा दिख रहा है तुम लोगों को इसमें? कोई बोला यार? 1110 वाला। ये लास्ट के 2 कॉलम, हाँ, लास्ट के दो दो, रो। हाँ ये लास्ट के 2 कॉलम वाला सबसे बड़ा ग्रुप है। इसको अपन कर सकते हैं। अच्छा, जब इसको पेयर करा, इन दोनों को पेयर किया, तो अपनी इधर से ये वाली इस वाली रो, ये पूरी रो हो गई, तो सीडी तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है? सीडी में तो कुछ भी नहीं बचेगा। इन दोनों में अपना ए कांस्टेंट है 1 पे और बी 1 से 0 चेंज हो रहा है, तो अपना बस ए बचेगा, बाकी दोनों खत्म। तो अपना एक सबसे पहले वाले से अपने पे ए बचा, ए प्लस। अभी दूसरी में दूसरी पेयरिंग डोंट केयर के साथ में इन चारों की करते हैं। ये 4 हो गए।
गाइस मेरा नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। अब शेयर तो हो रहा है ना स्क्रीन? हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ एक बार हाँ। चैट में भी चेक करते रहना, डाउट है शायद अभी एक। डाउट एक्चुअली मैं जब ये कर रहा हूँ तो उधर नहीं कर, पेंट वाली स्क्रीन खुल, मेरे साइड पे तो बस पेंट खुली हुई है। तो डाउट या तो तुम माइक ऑन करके पूछ लो या फिर कमेंट में मेंशन करो, जो बाकी लोग हैं वो लोग बता देंगे। तो पहली तो अपनी ये वाली ए हो गई थी। ये दूसरी पेयरिंग हमने इन दोनों की करी और तीसरी ए। इन दोनों की जब पेयरिंग करी तो कोई बताओ क्या बचेगा अपने पास? लाइक कोई माइक ऑन करके बोलो। BD BC। बी सी, हाँ यहाँ पे बी कांस्टेंट है 1 पे और सी कांस्टेंट है 1 पे, तो अपनी यहाँ पे बी सी बचेगी। और इधर से क्या बचेगा? BD हाँ सही है। तो ए प्लस बी सी प्लस बी डी। ये समझ आया ना सबको ये कैसे हुआ? ये W के लिए एक्सप्रेशन ये अपनी हो गई। इससे 3 से ज़्यादा कोई पेयर तो किसी को नहीं दिख रहे होंगे, तो ये 3 पेयर बन गए अपने। तो ऐसे सॉल्व करते के मैप। अभी तुम लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा, उसमें हम तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। 3-4 तो होंगे ही के मैप इक्वेशन, तो उधर से अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। और किसी के लिए भी सॉल्व कर दूं या फिर बाकी सारे कुछ देखोगे? वैसे टाइम कम है तुम लोग का, 7 बजे वो है, कोई वर्कशॉप है कॉप्स की, तो रह नहीं देते हो। भैया नंबर्स कैसे भरे थे आपके अंदर? अच्छा ठीक है। अपने पास W के लिए एक्सप्रेशन क्या थी अपने? W के लिए जो एक्सप्रेशन थी उसमें एक बार एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें दिखेगा कि W जो है वो 0 पे, जब A B C D की वैल्यू 0 0 0 है तो उस पे W की वैल्यू 0 है। अगर ये तुम्हारी 0 0 0 1 है तो वहाँ पे W की वैल्यू यहाँ पे भी 0 थी। वन, ये जो पहली बार जब 1 आया था वो इस पे आया था जब A B C D की वैल्यू 0 0 0 1 ये था, तब से ये 1 शुरू हुआ था। और ये एक्चुअली मेरी मल्टीपल स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, इस वजह से मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। किसी ने लिख रखा होगा तो देखो उस पे अपनी जो एक्सप्रेशन थी, जहाँ पे भी ये ए बी सी डी की वैल्यू, ये जो है ना, ये जो बॉक्स में लिख रहे हैं, ये ए बी सी डी के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू की वैल्यू है। ए बी सी डी की वैल्यू जब 0 1 है उस वक्त डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, जब चारों 0 है तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, ये वो लिख रहे हैं। समझ में आया जिसका भी डाउट था? लाइक ये देखो, जैसे ये वाली है, इसमें यहाँ पे W की जब A B C D की वैल्यू जब चारों की 0 थी तो W की वैल्यू 0 थी, जब 3 0 और 1 1 थी तो भी 0 थी। तो यहाँ पे देखो, ये W के लिए ये वाली सर्कल है, इसमें जब A B C D 0 है तो ये 0 है। जब ये A B C D 0 0 0 1 है तो भी ये 0 है। यहाँ पे जब 0 1 0 1 है तो W की वैल्यू 1 0 1, ये इन सब वैल्यूज बेसिकली करस्पॉन्डिंग में वैल्यूज लिख रहे हैं उनकी, कुछ खास नहीं कर रहे हैं कि जब इनपुट हमारा ये है तो W की वैल्यू क्या है, बस वही लिख रहे हैं। और ये डोंट केयर इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि अपने पास जो गिवन इनपुट्स हैं उनमें हमें बता दिया BCD जो होती है वो 0 से 9 ही होती है, BCD 9 से ज़्यादा नहीं होती। हमारी इनपुट 0 से 9 है, 9 से ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हमने ये 9 के बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं उनमें डोंट केयर लिख दिया, क्योंकि जब हमें यूज़र ने खुद ही बोल दिया कि वो W 9 के आगे इनपुट नहीं देने वाला, तो फिर अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बस उसी की एक्सप्रेशन है। ऐसे तो मैं 1 2 और सॉल्व कर देता पर टाइम नहीं है, तो x के लिए भी सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करना, और ये
कोशिश करना खुद से एक बार इसको देख करके करने की। सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। अच्छा तो अच्छा, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट वापस से अगर याद करो तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि हमारे पास इनपुट है 0 से 9 के नंबर्स, और तुमको उनमें 3 ऐड करके आउटपुट देना था। तो अभी हमने ऐडर पढ़ाया था। ऐडर का काम क्या था, बस वो ऐड कर रहा था। तो दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं हम लोग कि इतना सारा एंड गेट और गेट लगाएंगे, इन्वर्टर लगाएंगे, नॉट वगैरह, तो उससे अच्छा फुल एडर यूज़ कर लेते हैं। फुल एडर में हमारे पास 4 इनपुट थी, तो 4 फुल एडर लगेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, और सब हमें ऐड करना है 3। हर नंबर में 3, मतलब कुछ भी जो इनपुट होएगा उसमें हमें 3 ऐड करना है। तो एडर में क्या इनपुट होता था, एक A0 होता था, दूसरा B0, मतलब ये इनपुट नंबर है, और B0, B1, B2, B3 इसकी वैल्यू हम फिक्स कर देंगे ताकि ये 3 दिखे। और कैरी फुल एडर की जो पास होती थी ये वही कैरी है, इसमें कुछ खास नहीं। तो एडर इस पूरे सर्किट को हम बाइनरी एडर बोलते हैं, 4 बिट बाइनरी एडर। क्या हो रहा है कि हमारी यूज़र ने A0, A1, A2, A3 इनपुट डाला, उसमें इसने B0 से लेकर के B3 तक के नंबर्स 0 जो बेसिकली 3 है ऐड करके इसको रिटर्न कर देगा। इसमें हमें इनिशियली एक कैरी भी डालनी होती है, इनपुट कैरी तो कुछ है नहीं, तो वो 0 ही रह जाएगी। तो ये समझ में आया ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अभी इन दोनों में से कौन सा तरीका यूज़ करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। लाइक लैब में ही जाओगे तो कभी एंड गेट वो लोग देंगे नहीं, हमेशा नैंड या नॉर से सर्किट बनाना होगा, या फिर एडर दे देंगे, एडर अवेलेबल रहेगा, नैंड नॉर वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसे केसेस में हम किसी से भी कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल में है ही सब, अंदर नैंड वगैरह ही एंड वगैरह लग के ही बना है। तो ये फ़ायदा होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट का कि तुम इतनी सारी सर्किट बनाने की जगह पे ये 4 बनाओगे, इतना करोगे, उसकी जगह पे डायरेक्ट तुम एक सिंपली फुल एडर से ही कर सकते हो। ये समझ आया ना सबको? तो इसके बाद दूसरी कॉम्बिनेशनल सर्किट है अपनी डिकोडर। डिकोडर क्या होता है, जैसे इसका नाम ही पता चल रहा है डिकोड करता होगा कुछ। तो बेसिकली इसमें हम इनपुट देते हैं, और ये क्या करता है कि उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी भी एक लाइन, मतलब 2 इनपुट दिए, तो 2 इनपुट से हम लोग टोटल कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4। तो उन 4 में से कौन सी भी एक लाइन एक्टिवेट हो जाएगी हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग में। डिकोडर और भी बहुत सारे होते हैं, ये अपना बाइनरी डिकोडर है। तो इसमें ट्रूथ टेबल अगर इसका देखो तो क्या होगा, अगर A B00 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो D0 होएगा वो 1 होगा, और बाकी जितने भी होंगे वो 0 होंगे। जब 0 1 है यानी कि इसका जो मिन टर्म होगा मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग वाला टर्म 1 होगा, बाकी सारे के सारे 0। ये समझ आ रहा है ना? इसमें डिकोडर में कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। इस पे एक एग्जांपल भी करना है अपने को। भैया डिकोडर नहीं समझ में आया। देखो अभी मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है कि एक हमारे पास एक सर्किट है, उसके अंदर एंड वगैरह कुछ लगा रहेगा, और हम इनपुट कुछ देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट हमें मिलेगा। वो आउटपुट क्या होगा, वो इस डिकोडर के केस में वो इस सर्किट से देखो, हम ए और बी इनपुट दे रहे हैं, तो वो इनपुट अपना किसी एक लाइन के करस्पॉन्डिंग एक नंबर को एक्टिवेट कर देगा। लाइक जैसे अब अगर 0 0 है तो यहाँ से हमने 0 0 पास किया, तो जो D0 है ना उसकी वैल्यू 1 होएगी, बाकी सारे के सारे 0 रहेंगे। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं कर रहे, बस अगर हमने ए बी की वैल्यू 1 डाली है तो ये फर्स्ट वाली लाइन 1 होगी, बाकी सारी 0 होगी। अगर हमने 2 डाली है इनपुट में तो ये वाली 2 वाली ओपन होगी, बाकी सब 0 होंगे। ये देखो यहाँ पे 2 वाली 1 है, बाकी सारे 0 है। अगर 3 डाला है तो ये 3 वाला 1, बाकी सारे 0। अभी
मतलब अब को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका बहुत सारा फायदा हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अगर मतलब जैसे इसी सर्किट को देखो, इसको अगर तुम बनाने जाओगे तो इसमें क्या है, हमारे पास 4 इनपुट वाली है और इसमें तुम सारे मिन टर्म्स को लिख रहे हो, इसमें मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग 1 लिखना पड़ रहा है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है ना कि ये हमें ये डिकोडर अपने को मिनटर में जनरेट करके दे देगा, मतलब अपने को सर्किट बनाने की ज़रूरत ही नहीं, बस अगर तुम्हारा वो इनपुट में कुछ आया है तो उसका मिनटर वो अपने आप ऑन कर देगा। समझ आ रहा है ये? तो अगर लग रहा है कि ये क्यों यूज़ हो रहा है तो इसका 1-2 एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी इसमें ये m होता है और इधर ये 2 का पावर सॉरी ये n इनपुट है, तो उसके करस्पॉन्डिंग 2 टू द पावर n आउटपुट रहेगा। ये इसकी सर्किट में तो कुछ खास है नहीं, लाइक हमारे सर्किट में क्या ही होगा कि अगर D0 को अपने को रिप्रेजेंट करना है तो D0 बस एक केस में 1 है, बाकी सारे केस में 0 है, तो वो केस क्या होगा, A बार B बार, इस ये कर दोगे तो D0 रिप्रेजेंट हो जाएगा, तो बस ये वही है। ये लॉजिक सर्किट में बहुत ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लाइक बस इसका मिन टर्म लिख दो, जो D0 है वो किसके करस्पॉन्ड हो रहा है, D1 है वो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बस। अभी देखो हमने पीछे में एक फुल एडर यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। हाँ, ये फुल एडर इम्प्लीमेंट किया था हमने ज़ोर वगैरह लगा करके। अभी कोई पूछा ना डिकोडर समझ नहीं आता, तो डिकोडर का लॉजिक बस यही है। ये यहाँ पे हमने इतनी बड़ी सर्किट लगा करके एक फुल एडर इम्प्लीमेंट किया था, पर देखो यहाँ पे ना अपने को हम एक फुल एडर को एक डायरेक्टली बस एक डिकोडर और एक और गेट के हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक कोई थोड़ा सा पहले ट्राई कर लो 2 मिनट इस पे कि इसको कैसे कर सकते हैं, कोई किसी को दिखे तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे हो रहा है ये। किसी को दिख रहा है कैसे करेंगे कुछ, मतलब थोड़ा बहुत भी दिख रहा है तो बोल दो। कोई नहीं, किसी को भी नहीं दिख रहा है कुछ? देखो इसमें इससे पहले हमने दो इनपुट वाला डिकोडर देखा था जिसमें बस 2 ही इनपुट हो, A और B। उसमें क्या हो रहा था कि जब 0 0 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला मिन टर्म 1 हो जा रहा था, बाकी सारे के सारे 0 हो जा रहे थे। अगर 0 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग वाला मिन टर्म वाला 1 था, बाकी सारे 0 हो जा रहे थे। तो इसमें ये बताओ कि अपने को डिकोडर कितने बिट का लगेगा, लाइक 3 बिट के इनपुट है तो कितने बिट का डिकोडर लगेगा, डिकोडर के इनपुट में कितने बिट होंगे? क्या? 3 to 8 डिकोडर। हाँ 3 to 8 डिकोडर सही है। तो कुछ आइडिया इस पे कैसे करेंगे, लाइक सम कैसे आएगा? जिसने भी बोला था कुछ आइडिया है, लाइक इस आगे कैसे करेंगे इसके आगे? चलो ठीक है। पहले तो एक 3 to 8 डिकोडर अपने को यूज़ करना है। अभी देखो अपने को दो आउटपुट साइड में 2 चीज़ें होंगी, एक तो सम होगा, एक कैरी होगा, ठीक है। सम किस प्लेस पे 1 होगा, सम होगा तुम्हारा I 1 पे 1 हो रहा है, I 2 पे 1 हो रहा है, I 4 पे 1 हो रहा है और I 7 पे 1 हो रहा है। तो इस पे सम को हम ऐसे लिख सकते हैं एज अ सम ऑफ मिन टर्म्स, सम इक्वल टू समेशन ऑफ 1 to 4 7। अभी जब ये 1 to 4 7 हो गया ना, तो क्या करो
कि बस एक 1 से एक वायर निकालो, 2 से वायर निकालो, 4 से निकालो और एक 7 से निकालो और बस एक और गेट लगा दो। लॉजिक ये है कि देखो अपनी फुल एडर का प्रिंसिपल क्या है, बस अपने को इतना चाहिए कि एक जब हमारी तीनों 0 हो तो आउटपुट 0 होनी चाहिए। इतना ही करना है ना अपने को, तीनों 0 हो तो आउटपुट 0 होनी चाहिए, जब एक 1 हो तो आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो देखो अगर तुमने तुमने लाइक 0 0 0 पास किया, ठीक है, 0 0 0 पास किया तो 0 से तो कोई निकल नहीं, मतलब ये वाली 1 होगी, बाकी सारे 0 रहेंगे, तो सम 0 ही रह जाएगा क्योंकि ये सारे के सारे 0 है। अभी तुमने 0 0 1 पास किया, ये वाली 0 0 1 वाले केस पास किया, तो अगर तुमने 0 0 1 पास किया तो 1 वाला 1 होगा, बाकी सारे 0 रहेंगे, तो सम में एक 1 आया है तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 1 होएगा, तो अपना सम 1 हो गया। बस इतना ही तो अपने को चाहिए था। तो डिकोडर का काम बस ये है कि ये हमें ना एसओपी दे दे, मिन टर्म दे देगा, और मिन टर्म में और गेट लगा करके तुम कौन सा भी फंक्शन जनरेट कर सकते हो। उसी तरीके से कैरी वाले में अगर देखो तो जब कैरी 1 कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 3 पे 1 हो रहा है, 5 पे 1 हो रहा है, 6 पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है, तो बस 3 5 6 7 को लेकर के सम कर दो, ये हो गया कैरी। ये समझ में आ गया ना किसी को, या फिर यहाँ पे भी किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। डाउट नहीं है तो बोल दो कि नहीं डाउट है, ऐसे वन वे लग रहा पूरा। समझ आ गया भैया। अरे 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 तो ठीक है, आगे बढ़े ना फिर। देखो भी तुम लोग शायद बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गया, तो लाइक जो इम्पोर्टेंट वाले हैं मैं वो कवर कर देता हूँ। और ये इनकोडर और ये प्रायोरिटी इनकोडर इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मैं इसलिए डाल दिया था क्योंकि सेकेंड ईयर वाले भी आने वाले थे, और सेकेंड ईयर वालों का इस सेम में उनका डिजिटल का कोर्स है, तो उनके क्लास में बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन रहता है, इनकोडर पे भी, इस वजह से मैंने डाल दिया था। पर मैं इनको पढ़ाऊँगा नहीं, बस बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अपना डिकोडर, मक्स और एडर, इन पे प्रैक्टिस भी कर लेना, स्पेशली फर्स्ट ईयर वालों इस पे प्रैक्टिस कर लेना, और इनको ही ठीक से करना हो जाएगा। कोई ज़्यादा बहुत आसान चीज़ें, इनमें कुछ है नहीं। इनकोडर क्या है कि बस ये डिकोडर का उल्टा है। जैसे डिकोडर की ये वाली थी ना अपनी सर्किट, अब इनको पलट दो, बस आउटपुट को इनपुट कर दो, इनपुट को आउटपुट कर दो, तो यही होता है इनकोडर। तो इसमें क्या, डिकोडर में क्या हो रहा था कि अपने पे इनमें से इधर हम इनपुट दे रहे थे, इधर में अपने को आउटपुट मिल रहा था। इधर से अब जब तुम इनपुट दोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे तुमने 1 पे 1 किया, बाकी सबको 0 किया, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 1 को, तो ये यहाँ से अपना आउटपुट मिलेगा 0 0 1। ये बस इतना इनकोडर का काम है। इनकोडर का यूज़ भी कुछ खास नहीं, इनकोडर का सारा काम मक्स वगैरह से ही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी इनकोडर में क्या होती है ना कि देखो, इनकोडर की एक लिमिटेशन है कि जैसे डिकोडर में हो रहा था कि अपने पे 1 के बाद सारे 0 हैं, आउटपुट में क्या होता है 1 और बाकी सारे 0 मिल रहे थे। तो इनकोडर में मैंने बोला इसका रिवर्स है, यानी कि तुम जब इनपुट दोगे तो तुम्हारी एक इनपुट 1 होनी चाहिए, बाकी सारी 0 होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, कोई यूज़र तुम्हारा 1 1 0 0 भी तो इनपुट कर सकता है। तो इस केस से बचने के लिए हम लोग प्रायोरिटी इनकोडर डालते हैं। इनकोडर में यही बहुत गंदी लिमिटेशन है जिसके वजह से ज़्यादा फेमस नहीं। तो प्रायोरिटी इनकोडर में क्या होता है ना कि वो बस फिक्स कर देता है कि हमें प्रायोरिटी किसको देनी है। लाइक अगर यहाँ पे डी, ये क्या है, D3 है ना, हाँ, D3 पे 1 हो गया तो इसके आगे कौन सा भी 1 हो अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आउटपुट 1 1 ही जाएगा। अगर यहाँ पे जैसे D3 0 है और D2 पे 1 है, तो इस पे जब D2 1 हो गया, बाकी सारे क्या है अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, ये 1 0 ही आउटपुट देगा। तो ये है प्रायोरिटी इनकोडर। इसमें किसी को दिक्कत तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं मक्स पे। इनकी सर्किट नहीं बनवा रहा मैं, खुद ही देख लेना, आसान भी है और लगता नहीं कुछ काम है उनका, तो इनकी सर्किट रहने दे रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? ठीक है, फिर आगे बढ़ रहा मैं। मक्स पे आते हैं। मक्स अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है
तो मक्स में क्या होता है ना कि अपने पास कई सारे इनपुट होते हैं और हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि उनमें से कौन सा इनपुट अपने को आउटपुट पास करानी है। इतना क्लियर है? लाइक हमारे पास इतनी सारी इनपुट है 1 से लेके n तक। यहाँ से हम इतनी सारी इनपुट आ रही हैं, इनमें यहाँ पे हम बैठ करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इनमें से ये वाली लाइन पास हो जाए। जैसे पहले के ज़माने में टेलीफोन बुथ हुआ करता था, तो टेलीफोन बुथ में क्या होता था कि कई सारी कॉल्स आती थी और उनमें से किसी एक को हम डाइवर्ट कर देते, मतलब कई सारी एक साथ कॉल्स आती है ना ऑप्टिकल फाइबर से, तो उनमें से किसी एक कॉल को हम किसी यूज़र पे डाइवर्ट करते थे। तो ये सेलेक्ट लाइन का काम होता है कि इतनी सारी इनपुट है, इनमें से कौन सा इनपुट अपने को आउटपुट देना है, ये हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट इनपुट से। तो मक्स के बहुत सारे टाइप है, 2:1, 4:1, 8:1, 16:1। अच्छा, अभी लाइक यहाँ पे अगर अपने पास सेलेक्ट लाइन पे n वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे 2 to the power n टोटल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये समझ आ रहा है क्यों? जैसे डिकोडर में था ना, अपने पे तीन अगर XYZ 3 वैल्यूज हैं तो वो आउटपुट में 8 दे रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे हम ना तीन अगर इनपुट है तो उनके करस्पॉन्डिंग 3 सेलेक्ट लाइन्स हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 8 इनपुट में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये? 2 to the power n का चक्कर है। तो चलो ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है? चलो तो ठीक है, एक बात बताओ कि लेट्स से हमारे पास 100 इनपुट्स हैं, तो हमें कितनी सेलेक्ट लाइंस चाहिए होंगी मिनिमम, कि हम सबको कभी ना कभी सेलेक्ट कर पाएँ? मिनिमम कितनी सेलेक्ट लाइंस होनी चाहिए? हमारे पास 100 इनपुट्स है तो 2 to the power 100। कोई बोलो। 7। हाँ, नहीं, हमारी इनपुट लाइन 100 है, सेलेक्ट लाइन 100 नहीं है, इनपुट लाइन 100 है अपनी, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितनी सेलेक्ट लाइंस होनी चाहिए? 7। हाँ, सही है 7 होगा, क्योंकि 100 है तो अभी अपने पास 100 में से मतलब अपने पास 100 कीज होनी चाहिए ना। 100 दरवाजों को खोलने के लिए 100 चाबियां तो कम से कम लगेंगी, एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही यहाँ पे अपने पास 7 होंगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास टोटल ऑप्शंस होंगे 128 2 to the power 7, और उनमें से हम कौन सा भी एक आउटपुट पे भेज सकते हैं। एक मक्स का एप्लीकेशन और देख लो, लाइक हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम होता है ना, तो साउंड सिस्टम तो बस एक होता है, और घर में डिवाइसेस कितनी सारी होती है, एक लैपटॉप है, एक MP3 डेस्टिनेशन है, एक सैटेलाइट है, एक केबल टीवी वाला है। तो टोटल 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं, उनमें से किसी एक को हमें साउंड सिस्टम पे भेजना है। तो इसके लिए मक्स यूज़ करेंगे। लाइक अभी अगर हमने इनपुट किया 00 तो हमारा MP3 प्ले हो जाएगा। अगर हमने 01 इनपुट किया तो हमारा लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा साउंड सिस्टम। 10 प्ले किया तो सैटेलाइट से, 11 प्ले किया तो केबल टीवी से। ठीक है, ये इससे तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सारा केस। देख लो एक बार इसको ध्यान से थोड़ा। तो मैं पानी पी लेता हूँ। अच्छा, अभी इसकी मक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या होएगी? तो देखो, अपने पास पहले तो 4:1 मक्स बना रहे हैं अपन। तो 4:1 मक्स में अपने पास सेलेक्ट लाइन्स होंगी 2। ठीक है, अभी 2 सेलेक्ट लाइन्स में से अगर यूज़र ने हमने कहा क्या है, अगर हमने यूज़र ने 00 इनपुट किया तो I0 पे जो आ रही है ये अपने को आउटपुट देना है। अगर ये हुआ तो 1, ऐसा हुआ तो 2, ऐसा हुआ तो 3। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, लाइक मक्स में ना कभी-कभी एक इनेबल पिन भी होती है। ये जो G लिखा हुआ है ना, ये इनेबल पिन, किसी में इनेबल पिन, चलो शायद इनेबल पिन, हाँ ये देखो, मक्स में एक इनेबल पिन भी कभी-कभी होता है। इसका काम कुछ नहीं है, ये जब इनेबल की वैल्यू 1 रहेगी ना तभी मक्स काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। तो ये G बस इनेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इग्नोर कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, ये बस फालतू का है। तो ये जो G है ना, ये इसको हटाओ तो भी अगर एक्सप्रेशन लिखनी हो
तो y बराबर क्या होगी, I0 को तब सेलेक्ट करना है जब S0 और S1 दोनों 0 0, तो दोनों 0 0 हैं तो बस इनका बाहर ले लो। y बराबर I0 तब होगा जब S1 बार प्लस S1 बार इंटू S0 बार। वैसे ही प्लस I1 कब होना है, I1 तब होगा अगर S1 बार प्लस S0 हो। ऐसे ही इसका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में किसी को डाउट है तो बोलो, मैं वापस से समझा दूंगा। लाइक ये क्लियर होना चाहिए, इतने सारे एग्जाम्पल के बाद इतना तो समझ आना चाहिए कि ये कैसे लिखा है। किसी को डाउट नहीं है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ये बस उसी की सर्किट इम्प्लीमेंटेशन है। सर्किट इम्प्लीमेंटेशन देख लेना खुद से, बस अगर ये एक्सप्रेशन लिख दिया तो सर्किट इम्प्लीमेंटेशन कुछ है नहीं, बस वही उसी का है। तो चलो फिर एक इक्वेशन में देता हूँ तुम लोग को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर मैं समझ आया हो तो, कि तुम्हें एक नॉट गेट इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग अ मक्स। समझ आया क्वेश्चन? एक नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करना है एक मक्स के हेल्प से। कोई अटेम्प्ट करो, थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी को कुछ समझ आ रहा है कैसे करेंगे? मैं 2 मिनट देता हूँ, किसी को कुछ पता चले समझ आए तो बोलना। किसी को कुछ आइडिया कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मक्स के हेल्प से नॉट गेट? किसी को नहीं आइडिया? चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। सेकेंड ईयर वालों कोई हो तो बता दो, तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट्स में कोई? कोई तो बोलो। थोड़ा एक्टिव हो, आंसर्स देते रहो। सेकंड ईयर हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर ऐसे मतलब, वन वे लगता है पूरा, मतलब कोई आंसर नहीं कर रहा तो लाइक। and we are observing you. Event registrations चालू हो गए हैं. You have your teams formed. You are starting to get your teams formed. So we are observing you and your performance. अब से the clock is ticking. So yeah, if you know the answer, come up, speak it up. सेकेंड ईयर में सनिका, आकृति, तुम लोग तो कोऑर्डिनेट्स हो, तुम लोग कुछ बताओ। ये एंड गेट बनाना है? नहीं, नॉट गेट बनाना है, सॉरी अगर मैंने एंड बोला हो गलती से। भैया 2x1 मक्स यूज करेंगे ना अपन? हाँ, 2x1 मक्स यूज करेंगे। तो उसका एक मतलब जो फर्स्ट वाला है वो 1 कर देंगे, सेकंड वाला 0 कर देंगे। हाँ तो सही। तो एस पे जब 0 होगा तो 1 आएगा, एंड जब 1 होगा तो 0। हाँ सही है। लाइक देखो, अपनी मक्स ऐसी है, अपने पास अपने को क्या है कि अपने को एक नॉट गेट इम्प्लीमेंट करना है। तो एक क्या करेंगे, एक 2:1 मक्स लेंगे, जिसमें तो अगर नॉट गेट का काम क्या होता है अपना, कि अगर अपनी इनपुट 1 हो तो 0 कर दे, और अगर 0 हो तो 1 कर दे, बस इतना काम होता है ना।
तो अगर यहाँ पे अगर हमने इनपुट में a लगाया है और a की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये नीचे वाली लाइन को सिलेक्ट करेगा क्योंकि ये मक्स है, ये नीचे वाली लाइन को पास करेगा। तो इस वक्त पे क्या करते हैं कि नीचे वाली लाइन को हम लोग 0 कर देते हैं। और अगर a की वैल्यू 0 आ रही है, अगर a की वैल्यू 0 आ रही है तो ये ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करेगा। ऊपर वाली लाइन को सेलेक्ट करेगा मतलब कि इस इनपुट को पास करेगा, तो इस इनपुट को हम लोग परमानेंटली 1 कर देते हैं। तो ये हो गया। ये फिगर देखो, और अगर इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लो भाई, क्योंकि कोई आंसर नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी को कुछ खास हवा नहीं लग रहा है इसका। तो कोई भी किसी को भी थोड़ा बहुत, और फर्स्ट ईयर तो स्पेशली क्योंकि फंकेट तुम ही लोग का इवेंट है, तो अगर तुम लोग को ये सब क्लियर नहीं हो रहा तो फंकेट पता नहीं कैसे तो मुश्किल लग रहा है ये सब क्लियर नहीं हुआ तो इस पे कम से कम अच्छे से समझ लो। किसी फर्स्ट ईयर वाले को इस फिगर में दिक्कत है? ये कौन है? आदित्य सक्सेना। समझ आ रहा है ये क्या क्या बना रखा है? माइक ऑन करो यार अपना। हाँ, सब सो गए लगता है। हेलो। हाँ, समझ आ रहा है। ये हमने क्या बनाया यहाँ पे? हाँ भाई। लाइक थोड़ा एक्सप्लेन करो इस फिगर को। भैया ये 2:1 मक्स है जिसमें ए अपन इनपुट दे रहे हैं। हाँ अगर ए 0 होगा तो अपन ऊपर एक वाली सेकेंड, लाइन। इनपुट हमारी ए नहीं है, ए हमारी सेलेक्ट लाइन है, इनपुट हाँ हमने 1 और 0 दे दिया। हाँ हाँ। हम्म, अगर ए 0 होगा तो अपन ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट करेंगे, और ए अगर 1 होगा तो नीचे वाली। हाँ। तो अगर ए 0 हुआ, ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो गई, अगर तो ऊपर वाली लाइन हमेशा 1 ही है तो 1 ही पास हो गई, तो ए 0 का करस्पॉन्डिंग ए 1 हो गया। तो ऐसे ये नॉट गेट का इम्प्लीमेंटेशन हो गया ये। ठीक है, बहुत अच्छे। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं मक्स पे। लाइक मक्स पे काफ़ी क्वेश्चन आएगा तुम्हें जब कॉलेज में भी कोई कुछ बोल रहा है? ये उसमें सेलेक्ट कैसे करेगा? अगर 0 है तो 1 होगा तो 0। मक्स की तो वही प्रॉपर्टी है ना कि मक्स पे जो उसके करस्पॉन्डिंग वाली मिन टर्म होएगी वो सेलेक्ट कर लेगा वो। जैसे यहाँ पे हमने क्या बोला था कि अगर तुम्हारी इनपुट 0 है तो ये पहली वाली लाइन पे जो भी इनपुट होएगी, यहाँ पे जो भी इनपुट आ रही है, ये इसको पास कर देगा। अगर हमने यहाँ पे 0 हमने सेलेक्ट पे डाला है, सेलेक्ट लाइन पे, तो ये जो जो इसके करस्पॉन्डिंग वाली मिन टर्म होगी, 0 की मिन टर्म क्या होगी? D0, तो ये इसको पास कर देगा। तो वैसे ही हमने कहा कि बस एक इनपुट डालना है, ए है, अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो वो ऊपर वाली लाइन को हमेशा ऊपर वाली लाइन को पास होने देगा। तो बस इतना ही बोला है। अब समझ आ गया? हाँ भैया। चलो ठीक है। तो एक और क्वेश्चन मैं इम्प्लीमेंट कराता हूँ मक्स पे। लाइक मक्स से ना अभी हमने बुलियन फंक्शन एक यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। डिकोडर से हमने यहाँ पर एक बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट किया था। ये एक एडर, फुल एडर को हमने एक बुलियन फुल एडर को हमने एक डिकोडर से इम्प्लीमेंट किया था। मतलब समझ रहे हो कि एक डिकोडर है, उसको हमने पहले ज़ोर से इम्प्लीमेंट कराया, उसके बाद फिर इसको डिकोडर से इम्प्लीमेंट कराया। अभी एक मक्स के हेल्प से करा रहे हैं। हालांकि ये डिकोडर तो नहीं है पर सॉर्ट ऑफ सेम है, बस मिन टर्म्स अलग है थोड़े से। डिकोडर को भी कर सकते हैं, लाइक 1267 है ना, उसमें शायद 1247 था सम। तो ये इसको हम लोग मक्स से भी इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। जैसे ये वाली जैसे इसमें है। पहले तो मैं तुम लोगों को कोई मुझे ये बताओ कि 8:1 मक्स से इस फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, फिर मैं 4:1 मक्स से बताऊंगा। कोई फर्स्ट ईयर वाले या कोई सेकेंड ईयर वाले कोई भी बता दो। 8:1 मक्स से हमें ये फंक्शन इम्प्लीमेंट कराना है तो कैसे करेंगे? फिर किसी को पकड़ता हूँ मैं।
आयुष अग्रवाल, माइक ऑन करके बोलो कुछ, लाइक कुछ आइडिया कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उस फंक्शन को 8:1 मक्स से। नहीं आता। हाँ तो कोई बात नहीं, इतना रो क्यों रहे हो, कोई बात नहीं, चल। तो किसी को भी नहीं आइडिया है? अभी देखो कुछ नहीं करना, बस हमारे पे क्या है कि अगर उसने अगर हमारी इनपुट अगर एक्स वाई जेड हमारी 3 इनपुट है, अगर 0 0 0 है, तो इसका मतलब कि हमारे मैं चलो एक बार फिर से फोटो बना लेता हूँ इसकी। लाइक यहाँ इस बार हम लोग 3 इनपुट, मैं कहा 8:1 मक से हमें कोई फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, तो इस बार 3 इनपुट लेंगे और यहाँ पे हमारी इसके 3 इनपुट के करस्पॉन्डिंग 8 लाइन्स होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये भैया 8। हाँ भैया 3 इनपुट थोड़ी बोलेंगे, 3 तो सॉरी select सॉरी line बोलेंगे। ठीक है, हाँ 3 Select. सेलेक्ट लाइन बोलेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग 8 इनपुट्स होंगे, ठीक है, सॉरी। तो 3 इनपुट्स हुए, तो 3 इनपुट के करस्पॉन्डिंग लाइक हम करना है समेशन ऑफ 1 2 6 7। तो कुछ नहीं, अगर हमारे यूजर ने 0 0 0 इनपुट कराया है तो उससे करस्पॉन्डिंग हम लोग को आउटपुट क्या देनी है यार, नेटवर्क 0। हाँ, तो यहाँ पे बस अपने को 0 पास करा दो, सिंपल, लाइक यहाँ पे बस 0 पास करा दो, क्योंकि अगर यूजर 0 0 0 इनपुट करेगा तो उसको आउटपुट पे 0 चाहिए, तो 0 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन सेलेक्ट करेगा, तो बस इसको पास करा दो, सिंपल सिंपल। फिर 1 पे भी अपने को 0 ही पास करानी पड़ेगी। 2 पे अच्छा सॉरी, अपना फंक्शन क्या था यार, फंक्शन 1 2 6 7 सॉरी, तो 1 पे अपने को 1 पास करानी पड़ेगी, 1 पे 1 पास कराया, और 1 2 6 7 2 पे भी 1 पास करा देंगे, 3 पे 0, 4 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 1 हो जाएगा, 7 पे भी 1 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है कैसे बनाया इसको? इसमें भी डाउट हो किसी को तो पूछ लो, लाइक आई गेस डाउट नहीं है। कुछ नहीं करना यार, बस इसमें बस लाइक जो इतना तो फिक्स है कि अगर यूज़र ने हमें कुछ भी इनपुट दिया, उसके करस्पॉन्डिंग इनमें से कोई एक लाइन सेलेक्ट होगी, ये फिक्स है। अभी अगर वो बोल रहा है कि 0 0 0 के करस्पॉन्डिंग हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, तो उसको बस पास करा दो उस वाली लाइन से। अभी अगर लाइक 0 1 0 1 0 है, तो 0 1 0 यानी कि 2 2 पे तुम 2 वाली लाइन पे जो आउटपुट मांग रहा है वो बस वो पास करा दो। डिकोडर भी तो ऐसा ही था कि जब तुम्हारी 2 हो रही थी तो उसके करस्पॉन्डिंग वाली जो मिन टर्म थी वो 1 हो जा रही थी, बाकी सारे 0 ही रह रहे थे। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है। थोड़ा एक बार इसको बुक से पढ़ना या फिर नीजो एकेडमी के एक थोड़े से ट्यूटोरियल देख लेना, तो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान चीज़ें ये सब, इनमें तो कुछ ऐसा कुछ स्ट्रेस लेने वाला है नहीं। तो अभी थोड़ा सा एक और उसी को 4:1 मक से बस इम्प्लीमेंट करके बता दे रहा हूँ। लाइक अभी इसमें क्या होता है ना कि कभी कभी 8:1 मक्स की जगह पे 4:1 मक्स से ये क्वेश्चन इम्प्लीमेंट करने को बोल देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं ना कि दो इनपुट को सेलेक्ट लाइन में ले लेते हैं और एक को इधर भेज देते हैं। अभी ये जो लास्ट वाली z बची ना, लाइक इसमें एक्स वाई को सेलेक्ट लाइन पे ले लिया और z और f है, z और f को कंपेयर कर लेते हैं। या तो ये जो हमारी रिजल्ट है वो z के इक्वल आएगी, या फिर z बार आएगी, या फिर 0 आएगी या 1 आएगी। यही केस हो सकते हैं, यही 4 केस हो सकते हैं, इनके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। अब बस यही हो कि इनमें से किसी पे भी कौन भी 0 हो जाएगा, कौन सा 1 हो जाएगा, बस इससे कंपेयर कर लेते हैं। लाइक जैसे इस वाले को देखोगे तो 0 0 0 और x एक z जब चेंज हो रही 0 से 1 में, तो वहाँ पे x और y तो फिक्स है,
एक्स और वाई फिक्स है, इस केस में हमेशा ये 0 वाली लाइन को सेलेक्ट करेगा। अभी 0 वाली लाइन को देखते हैं, ये जो आउटपुट है वो z के कंपैरिजन में कैसा है। ये 0 1 है, तो ये 0 और 1 है, और आउटपुट भी अपना 0 और 1 है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली लाइन है उसमें सिंपली z को ही पास करा दिया हमने। यहाँ पे जब x और y की वैल्यू 0 1 है, इन दो में x y की वैल्यू तो फिक्स है 0 से 1, z चेंज हो रहा है 0 से 1। तो इस केस में हमने आउटपुट देखा, लाइक ये थी ना, ये 1 2 6 7 है, तो ये 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 6 पे 1 है और 7 पे 1 है, बाकी सारी वैल्यूज पे ये 0 है। तो ये तुम्हारी इसके करस्पॉन्डिंग 1, इसके करस्पॉन्डिंग 0, ये z का सीधा उल्टा है तो z बार हो गया। इसमें 0 है तो ये 0 है, 1 यहाँ पे, मतलब इन दोनों को बस कंपेयर करके देख लो और इसको पास करा दो इससे। तो ये जो है इससे हम लोग 4:1 मक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी को इसमें डाउट? इसमें तो डाउट होना चाहिए, बहुतों को होगा आई गेस। जल्दी बताओ किसी को डाउट है तो, लाइक अभी ख़त्म भी करना 7 बजे से पहले, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा मैं। नहीं है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी मक्स पढ़ लिया, डीमक्स बस उसी का उल्टा है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसमें बस हमारी डेटा इनपुट की एक लाइन होगी और एक सेलेक्ट इनपुट होगा, और लाइक इनमें से किस लाइन पे वो डेटा जाएगी ना, ये हम बस सेलेक्ट की हेल्प से डिसाइड करेंगे। उधर क्या हो रहा था, हमारे पास 8 इनपुट, लाइक 8 इनपुट आ रही होती थी, उससे करस्पॉन्डिंग 3 सेलेक्ट लाइन होती थी, उनमें से किसी एक को आउटपुट पे भेजते थे। इसमें उसका रिवर्स है, हमारे पास एक डेटा इनपुट है और हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास इनमें से किस पे आउटपुट ये डेटा इनपुट के बराबर होगा, बाकी सारे 0 रहेंगे। लाइक इसका ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल बस ऐसा ही है कि इनेबल को इग्नोर कर दो, इनेबल में कोई दिक्कत नहीं, वो बस 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ दिक्कत। अगर ये 1:2 डीमक्स है तो जब सेलेक्ट लाइन 0 है तो आउटपुट तुम्हारी y 0 पे 0 होगी, और जो y 1 है उस पे डी इन होगी, और जब ये 1 है तो y 0 पे डी इन, इस पे 0। और बाकी अगर इनेबल 0 है तो डोंट केयर, उसको तो इग्नोर ही कर दो। तो ऐसा है तुम्हारा डीमक्स। किसी को डाउट ओवरऑल में कुछ, या फिर ऐसा कि कुछ भी हवा नहीं लग रहा, कोई ऐसा भी? लाइक ख़त्म हो गया, इतना ही पढ़ाना था हमें। तो अब किसी को कुछ मन की बात करनी हो तो कर लो। लाइक भैया कुछ नहीं आ रहा, एकदम से हवा ऊपर ऊपर जा रहा है, ऐसा कुछ भी? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। और हाँ, एक बात और कि हम लोग अब तुम्हें 1-2 दिन में एक असाइनमेंट देंगे। अभी लाइक टीम्स तो बनी नहीं होंगी तुम्हारी, तो सारे लोग सबमिट करना जो लोग, और हम क्या करेंगे कि जब टीम बन जाएगी तो उसका एवरेज ले लेंगे फाइनल स्कोर में तुम्हारी टीम का, और असाइनमेंट के स्कोर होंगे जो तुम्हारा असाइनमेंट और क्विज दोनों के, इनफैक्ट जो तुम्हारा एंड में लाइक जो इवैल्यूएशन होगा उसमें उसका वेटेज भी रहेगा, कुछ 10 या 20% है ना? 10 है या 20 है? किसका? असाइनमेंट और क्विजेस वगैरह के का वेटेज डिसाइड कर लेंगे, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, चले वो हाँ अपने ऊपर ही है सब, मतलब एक उसका वेटेज कोई रहेगा लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है। एक लड़का पूछ रहा है यूट्यूब वीडियो, तो हाँ, नीजो एकेडमी के देख लेना, नीजो एकेडमी के काफी सही निजो होता है। अकेडमी की हाँ पूरी एक डिजिटल की प्लेलिस्ट है अराउंड 200 प्लस वीडियोस की, बट उसमें सारे मत अपने देखना, उसमें से काम हमने की जो भी टॉपिक्स टॉपिक्स हैं हाँ जो भी वही। टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनको खोज के देख लेना बस। हम्म, और ये बहुत फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ा लग रहा है शायद, ये मतलब ऑनलाइन है तो इंटरेक्शन कम है, इस वजह से थोड़ा शायद हेक्टिक लग रहा हो, बाकी ये बहुत आसान है। लाइक लास्ट ईयर डीजीसीएम फर्स्ट ईयर वाले ही जीते थे। कोई क्या नाम था उसका, क्या जो भी नाम हो, लास्ट ईयर जीते थे, और उसके पहले साल भी विश्रुत भैया थे, तो वो भी डीजीसीएम लाइक सेकेंड ईयर वालों को हरा के फर्स्ट ईयर वाले ही जीते थे। अभी शायद थोड़ा ऑनलाइन के वजह से, और लाइक हमने थोड़ा प्रैक्टिस भी कम कराया है, लाइक अभी तक ग्रुप नहीं बनी थी,
व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, तो इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट इवेंचुअली सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब सारी चीज़ें जैसे ढंग से चलनी चाहिए थी वैसे ही चलेगी। ग्रुप भी बनने वाला है तुम्हारा, रजिस्टर करके टीम बना लेना, उसके बाद सब कुछ स्मूथली चलेगा। भैया अभी रजिस्ट्रेशन कब तक ओपन रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई टीम डिसाइड नहीं की है इसमें। अरे एंड तक एक 2-3 हफ्ते पहले तक भी करो तो काफी टाइम है। यू कैन रजिस्टर, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम, यू डोंट नीड टू लेकिन वरी। मार्क्स कैसे अभी जोड़ेंगे, आप कह रहे थे ना जैसे कि असाइनमेंट के मार्क्स जोड़ेंगे। अभी हम तुम्हें असाइनमेंट जब देंगे तो इसी टीम्स के इसी प्लेटफॉर्म पे रहेगा, और अभी तुम सबमिट करोगे तो हम चेक करके रख लेंगे, फिर जब तुम्हारी फाइनल में जब तुम्हारी टीम्स की लिस्ट आएगी उसमें हम एवरेज करके रख लेंगे। ऐसा कोई मतलब अभी करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी टीम्स बन रही है तो वो तुम मतलब लास्ट तक भी इंडिविजुअल बना सबमिट सकते करो हो। ना, असाइनमेंट अभी इंडिविजुअल ही सबमिट करो। तुम्हारे पास 1-2 महीने का आराम से टाइम है, मतलब अपनी टीम ढूंढने के लिए कोई जल्दी नहीं है, बस अपना असाइनमेंट कर लेना। इंडिविजुअल सबमिशंस कर दो, अभी मार्च तक टाइम है तुम्हारा। अप्रैल फर्स्ट वीक में विल हैव अ इवेंट, सो तब तक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के रिसोर्सेज एंड ऑल विल बी अपलोडेड ऑन दी उद्यम 21 टीम्स, डोंट वरी। और थोड़ा इंटरैक्टिव बनो यार, मतलब ऐसा कि कोई डाउट पूछता ही नहीं कुछ, मतलब थोड़ा और इंटरैक्टिव हो तो हम लोग का भी मन लगा रहता है, कोई कुछ पूछ रहा है कोई कुछ बोल रहा है। और अभी नहीं पूछ पा रहे हो तो यू कैन आस्क, मतलब कोऑर्डिनेटर्स के नंबर्स है, कॉन्टैक्ट्स है, पर्सनली भी पूछ लेना, दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन यू। कोकोडिस से भी पूछ सकते हो, कोकोडिस का तो सर खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको पीएम कर करके परेशान कर दो, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं है, तो उन पे ज्यादा फोकस करना, हम पे थोड़ा छोड़ देना है। नहीं पूछ सकते हो, कोई चल हाँ रहा है वो मतलब भी। पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर कोकोडिस का सर पहले खाना, उनका पूरा समझ रहे हो। की टीम को और सारे फिर इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना हो? नहीं तुम्हारी मर्जी, तुम जितने में कर पाओ, जितने इवेंट संभाल सको तुम, तुम्हारे अकॉर्डिंग है, ऐसा कोई हट सच नहीं है। दूसरी टीम कर सकते हैं? वापस से बोलना, सुन नहीं पाया मैं। एक टीम और दूसरे इवेंट के लिए दूसरी टीम। अरे चिल्ला है सर, आप हाँ घर की वो बात है, सब चिल्ला है। तुम डीजी सिम वो के तुम्हारे लिए ऊपर है। वो और लोगों के साथ बना लो, और मोजाइक के लिए किसी और 2 लोगों के साथ बना लो, वो तो देयर इज नो सारी रिस्ट्रिक्शन। टीम अलग होती है, सबकी हर इवेंट की सारी अपनी इवेंट होती के है। लिए अलग अलग रजिस्टर करना होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए अभी फर्स्ट ईयर के लिए 3 की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि तुम मतलब 2 लोग को और ढूंढ लेना अपने लिए जो डीजीसी में तुम्हारे साथ रह सके। और फंकेट में तो फंकेट में 2 दो भी की कर टीम सकते हो, रहती कोई है। दिक्कत नहीं है। फंकेट में 2 की टीम रहती है, डीजीसी में 3 की। नहीं, फॉर फर्स्ट ईयर दिस टाइम ऑल इवेंट्स हैव 3 मेंबर्स, ओह ओके अच्छा, ऐसा क्या? इवन फनकिट ओके, इज। इस साल बदल गया, कोई नहीं, इस साल मतलब 3 है, बाकी सेकंड ईयर के लिए 2 की होती है डीजीसी। और कोई डाउट किसी? एजुकेशन और फनकेट के इवेंट्स में क्या डिफरेंस होता है? दोनों की वर्कशॉप तो साथ में होती है। हार्डनेस का डिफरेंस अंतर है बस। देखो हम ऐसा होता है ना कि हम 2 हफ्ते पहले पीएस दे देते, सारे इवेंट का पीएस 2 या 1 हफ्ते पहले आएगा, उसमें तुम उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तुम घर पे बैठ के कितने पीएस सॉल्व कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हें आखिरी दिन ही दिखाना है ऐसा। और इस बार मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होगा, तो इम्प्लीमेंटेशन का भी दिक्कत नहीं है, लाइक प्रोटीएस में ही करके सारा कुछ हो जाएगा, तुम्हें सर्किट तो बनानी नहीं, तो लाइक तुम्हें मिल जाएगा, तुम घर पे बैठ के जितने पीएस सॉल्व कर सको, जितना कर सको सब खुद से देख लो। डिफरेंस दोनों में बस ऑल्सो इतना होता है। फर्स्ट ईयर के लिए इस बार एडवांटेज ये है कि बिफोर उद्यम यू हैव 2 वीक्स ऑफ हॉलीडेज, सो दिस वोंट क्लैश विथ योर क्लासेस, यू कैन गिव लॉट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। हमारे टाइम में ये नहीं होता, हमें क्लासेस करना पड़ता है, सो दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू गाइस। एंड फनकिट विल बी रिजर्व्ड फॉर फर्स्ट ईयर्स, उसमें हाँ सेकंड ईयर राइट्स उसने वही डिफरेंस ही करेंगे। पूछा था। डिफरेंस बस इतना था कि हाँ। फंकिट काफी हम मतलब एक सिंपल सी बस एक फीडबैक सर्किट रहती है, सीक्वेंशियल सर्किट, बस उसी लेवल का हम पीएस रखते हैं कि एक सिंपल सीक्वेंशियल फीडबैक सर्किट बना के कंप्लीट कर सके, तो वो काफी आसान रहता है। अगर तुम बेसिक्स कर लो तो उसको बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आधे से 1 घंटा लगेगा सर्किट डिजाइन करने में।
डिजिटल थोड़ा सा हार्ड होता है, तो उसकी सर्किट भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, बस हार्डनेस का अंतर है दोनों में। और कंटेंट हार्डनेस ऐसे भी कुछ नहीं होती है, लाइक तुमने अगर कंटेंट और हमें जो जितने तुम्हें रिसोर्सेज दिए ना तुम्हें उसको बस पूरा पढ़ लो, वो हो जाएगा, वैसा जो कुछ नहीं होता। पढ़ना है तुम्हें वो